Let's start, ladies and gentlemen, boys and girls. Let's start the MCQs. Yesterday we did 5 MCQ. Today we'll proceed further. आगे बढ़ेंगे उससे. So the first MCQ that today we'll solve is the sixth. Dash is the polynomial with 0 and 4. Dash is the polynomial with 7 and 4. So if you have 7 as a 0 and 4 as a 0, then you'll have two different factors, x minus 7 and x minus 4. Correct? If you multiply these two, you will get the quadratic polynomial. But for that, what you will have to do is x square plus x plus addition no multiplication. Now some may ask me कि भाई हमें तो स्वच्छ बेनु एडिशन कीधું અને તમે તો માઈનસ લખ્યું, but I have to take addition of these two along with sign. એની જે sign હોય તેની સાથે. So if I take -7 plus -4, તો એ શું થઈ જવાનું? It is going to be -7 -4 only. So that is the thing which I have written over here directly. Now simplified, x square, addition of these two will be -11, and during multiplication minus minus will become plus, and therefore 7 fours are 28. This is my answer. Where is it? This is it. Option A. Option A. Option A is the correct answer. You got it. Second question, or seventh height, I would rather say. Alpha and beta are the zeros of this polynomial. Then 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to dash. So first of all, I'll have to write down the coefficients. A is equal to 12, B is equal to BC is equal to 19 and C is equal to 5. Yes, Palav. Very good, beta. Now I'll have to write the question. The question is 1 upon alpha plus 1 upon beta. So 1 upon alpha plus 1 upon beta needs to be simplified like this. Yes. So this will go over here, and alpha will go up over here. Alpha plus beta will be the numerator, and alpha into beta will be the denominator. Now we know for sure the formula of both of them. Sum of the zeros is minus b upon a, and product of the zero is c upon a. Equal to minus b upon c. Minus b upon c is the answer. This value of my Minus 19 upon 5. it will be minus 19 upon c means 5. This is my final answer. Where is Option D. the answer? Option D. D. Option D is the correct answer for this. Right. समझ पड़ी बच्चों? Yes, sir. सही. Yes, sir. चलो बोलते रहना, ऐसे ही जोर से बोलो. जय माता दी. आगे बढ़ो. Zeros of the polynomial these and these are this. So I have a polynomial x square plus 2x minus 48. And what are its zeros? So in order to find out the zero, I need to factorize it such a way that I get plus 2 right here. So the factors of this will be 24 2 za nahi chalega, 12 4 za nahi chalega, है ना? आगे 8 6 जा 6 8 जा 6 8 za, yes it will do. ये तो चलेगा. इसको क्यों क्रॉस किया? देखो ये मैंने क्या किया, इसका फैक्टराइज करता गया. यहाँ पर 24 लिखा, इसको फिर से मैंने 12 और 2 में डिवाइड किया. 2 कहाँ गया? तो इसके साथ में गया तो 4 हो गया. फिर से यहाँ पर 6 2 जा किया, 2 कहाँ गया? तो 2 इसके साथ में गया, 8 हो गया. ऐसे करते जाओ तो आपको दो फैक्टर मिलेंगे, 6 8 जा, और हमको लाना है +2. सो ये वाली साइन, सो आई हैव टू गिव दिस साइन टू द बिगर नंबर, एंड आई हैव टू आस्क दिस पर्सन, ओ बॉस, what is your permission? If there is your permission, I'll keep the sign. But ये बच्चा बोलता है नहीं, boss is saying no,
सिंस इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा -6. So I have got two factors. You can directly write this one, huh? If it is MCQ, you can directly write it like this: x plus 8 and x minus 6. These two are the factors, and if these two are the factors, x is equal to -8 and x is equal to 6. These two will be the zeros. These two will be the zeros. तो देखो यहाँ पर ध्यान से मैंने क्या किया. अगर आपको लगता है कि नहीं सर शॉर्टकट मारियो, दिस इज नॉट गुड, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ पर 0 लिखो, 0 लिखो. अब इसमें से x कॉमन निकालोगे, x प्लस 8 ही होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है. इधर माइनस निकलेगा बाहर कॉमन, 6 इज कॉमन, x प्लस 8. समवन में आस्क मी सर 8 की माइनस नहीं आवे प्लस आवे. नो बच्चा, यहाँ पर ये प्लस है, सॉरी माइनस है, वो प्लस में कन्वर्ट होगा. व्हाई? बिकॉज बाहर माइनस साइन है. तो ये माइनस जो है ना, ये विलन है. ये जब भी आता है सब की साइन चेंज कर देता है. मतलब विलन पथारी फेरवे आ बधानी साइन चेंज करे. सो विलन है माइनस. ओके, सो नाउ आई गॉट टू फैक्टर्स x plus 8 and x minus 6. So I got the two zeros right here. तो कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा मेरे लिए? Which option is right? I think option C. Good. All right. और आगे बढ़िए और कुछ कीजिए. तो यहाँ पर ये वाला करते हैं जो यहाँ पर एस्ट्रिक बताया गया. Whenever you find asterisk right here, ये देख रहे हो asterisk, तो ये asterisk represent करता है these sums are taken from exemplar book. आपको पता है exemplar book जो NCERT की आती है? नहीं पता? Yes sir. तो NCERT वाला एक तो टेक्स्ट बुक बनावे, एक तो टेक्स्ट बुक आवे, सेकंड थिंग इज एग्जाम्पलर बुक. सो these questions are taken from exemplar book. तो एग्जाम्पलर बुक बहुत अच्छी होती है, उसमें से भी हम लोग सम कर सकते हैं. इट इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस बुक प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड NCERT. लेकिन हमको गुजरात बोर्ड के लेवल पे करना है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे. अगर किसी को करना है और उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो मैं आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइस. हायर लेवल पे आप कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो, कुछ भी प्रैक्टिस करो. अगर डिफिकल्टी आती है, रुकते हो, मेरे को पूछो, मैं करूँगा, करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं तो तुमने करवानू कीधेलू ज नथी, व्हाई आर यू डूइंग दिस. नो, आई विल नेवर आस्क यू लाइक दिस. आप जो भी मैं करवा रहा हूँ वो तो करना ही है, और आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो. चलो आगे. इसके बाद 9th क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग, both the zeros of the polynomial this have dash signs. तो साइन के लिए बहुत बड़ी साइंस हमको नहीं लगानी, हमको ये देखना है कि -150 के ऐसे फैक्टर लाओ which gives me +51. तो हमको तो सिर्फ साइन से मतलब है, हमको तो सिर्फ साइन से मतलब है. ठीक है, तो साइन को देखने के लिए यहाँ पर देखो ये प्लस है, तो दो फैक्टर मान लो कि मेरे एक फैक्टर x है और दूसरा फैक्टर y है, तो ये साइन तो मेरे को बिगर नंबर को देनी है, मतलब प्लस देना है यहाँ पर. और ये बॉस बोलता है ना ये नहीं चलेगा, तो ये साइन यहाँ पर नहीं आएगी, तो कैसी आएगी यहाँ पर? माइनस साइन. ठीक है, तो ये दो फैक्टर रहेंगे मेरे, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव. अगर ये वाले फैक्टर रहेंगे तो मेरा जो जीरोज है, द जीरोज दैट आई एम गोइंग टू गेट will also one of them will be positive and one of them will be negative. ठीक है, so both the zeros will have dash sign, ऐसा पूछा गया है. तो both the signs have Opposite sign. equal sign. There is no Opposite signs. equal sign कब होती? जब यहाँ पर प्लस होता, अगर ऊपर अगर प्लस होता तो हम बोलते कि दोनों प्लस आएंगे या फिर दोनों सेम माइनस आएंगे. यहाँ पर छोड़ो, इसको छोड़ो, ये जो प्लस होता तो यही साइन यहाँ पर लगेगी. इफ इट इज प्लस राइट हियर ओवर हियर, यहाँ पर प्लस होता तो हम दोनों साइन सेम लेते. ये वाली साइन है वही साइन यहाँ पर चलेगी, क्योंकि हम उसको यस बोलते हैं. प्लस मीन्स यस, नो नेगेटिव मीन्स नो. तो ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से सीख लेनी है. और बाद में यहाँ पर देखना, अगर ये प्लस है तो दोनों प्लस वाले होंगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस वाले होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही देखना था हमको कि दोनों जीरोज अपोजिट है कि नहीं, whether both the zeros have opposite sign or not.
तो यहाँ पर क्लियर कट हमको पता चलता है ऊपर जो ये 50 जो माइनस है, तो ये माइनस का मतलब होता है कि यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, साइन तो अपोजिट ही रहेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लास्ट 10th सर क्वेश्चन। ओ बोलो। सर प्लीज एक बार 7th सम करावी શકો? Repeat is not the solution. કેમ શું થયું હતું? આપણે 8 સર 9 મેં કનેક્ટ થતી હતી ને એટલે મારથી જોવાયું નહીં। अरे बेटा चल कोई बात नहीं, करा देता हूँ, फटाफट देख ले। ये अल्फा 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये नया सम नहीं है, हम लोग ने बहुत सारे ऐसे सम किए हैं, तरह तरह के सम किए, वी हैव डन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स राइट हियर। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपन ए हो जाएगा कट, यहाँ पर आ गया माइनस बी अपन से। दिस इज योर आंसर। माइनस बी क्या है देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, लुक एट द क्वेश्चन। माइनस बी है 19 और नीचे सी है कौन 5, सो दिस विल बिकम minus 19 upon 5. This is your answer. Okay? ओके सर। यस सर। Good. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो 10th क्वेश्चन यहाँ पर 10th में क्या पूछा गया है। If the zeros of the polynomial these are non-zero opposite real numbers, non-zero opposite, जीरो भी नहीं है लेकिन अपोजिट है, then dash holds true, then dash holds true। तो क्या क्या ट्रू यहाँ पर होल्ड करता है, तो हम लोग इसको थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ऑप्शन भी दिखेंगे हमको। अभी हम ऑप्शन भी देख सकते हैं। सो ए इज 0, b less than 0, a is 0, b greater than 0, a is not equal to 0, b less than 0, a is not equal to 0 and b greater than 0। These are various options given to us। कंडीशन क्या है, कंडीशन इतनी ही है सिर्फ कि रूट्स आर नॉन जीरो अपोजिट रियल नंबर्स। ठीक है, जीरोस ऑफ दीज आर नॉन जीरो अपोजिट नंबर। अभी नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो नहीं है तो जीरो नहीं होने चाहिए। क्या जीरो नहीं होना चाहिए, तो के रूट, इसके जो रूट मतलब उसके जीरो सॉरी अल्फा और बीटा जो आएंगे दे आर नॉन जीरो एंड बोथ ऑफ देम आर अपोजिट। एक जो भी है दूसरा उससे अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना, हम क्या करते हैं वो ट्री लिखो, यहाँ हमारा जो ट्री है वो ट्री बनाओ। बी को स्प्लिट करना है और लाना है हमको क्या, ए लाना है। ठीक है, बी को स्प्लिट करना है और ए लाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी को स्प्लिट करना है और ये लाना है। यहाँ पर हम करते हैं कि नहीं करते, ये शू करिए આપણે -159 फैक्टर विच गिव्स मी +51। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करो, बी ना एवा फैक्टर लावाना विच गिव्स मी ए। सो मान लो अगर इसके दो फैक्टर हैं x और y, तो ये फैक्टर जो आएंगे उसी में से तो मेरा जीरो मिलेगा, उसी में से मेरा जीरो मिलेगा। एक एक्स वाई की जगह पे अगर मैं एक को अल्फा लिखूं दूसरे को बीटा लिखूं चलेगा। ठीक है, साइन अलग आएगी लेकिन ठीक है, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। अभी मेरे को क्या बोला गया है यहाँ पर, डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। इफ a इज इक्वल टू 0, पहला वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर, इफ a इज इक्वल टू 0 पहला वाला ऑप्शन, तो a अगर जो 0 था तो मतलब आ केवा हो जाए, एक 2 हो तो बीजो -2 हो जाए। ट्रू, બંનેની સાઇન કેવી હોવી જોઈએ, સાઇન શુડ બી અપોઝિટ એન્ડ વેલ્યુ શુડ બી સેમ। વેલ્યુ સેમ હોવી જોઈએ, 3 હોય તો આ બી 3 હોવું જોઈએ, પણ બંનેની સાઇન કેવી, આ નેગેટિવ હોય તો પેલો પોઝિટિવ અને આ પોઝિટિવ હોય તો આ નેગેટિવ, એવું હોવું જોઈએ। એગ્રી? હા બોલો। सो इफ बोलो हाँ यस। तो ऐसा अगर है यहाँ पर जीरो कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू अपोजिट है। अगर दोनों की वैल्यू अपोजिट है मतलब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ऐसा कब होगा, जब ये वाला कैसा होना चाहिए, माइनस नेगेटिव। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव।
तो नेगेटिव का मतलब होता है बी लेस देन जीरो। आपको जब भी यहाँ पर बोला गया कि बी लेस देन जीरो, तो जीरो से कम वाले नंबर कैसे आएंगे? नेगेटिव। द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन आर ऑलवेज नेगेटिव नंबर। इतना आप अपने दिमाग के अंदर मतलब बिठा दीजिए। जब भी आपको बोला गया बी लेस देन जीरो मतलब बी नेगेटिव आएगा। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये तो मेरे को सही लगता है। अगर ए जीरो है तो इफ ए इज जीरो देन बी विल श्योरली बी नेगेटिव। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ही मेरे को सही लगा। अगर मान लो दूसरा ऑप्शन में कंसीडर भी करता हूँ सेम चीज में, आई विल कंसीडर द सेकंड ऑप्शन इज फॉर द सेम सिचुएशन। तो यहाँ पर मेरे को बोला गया है ये वाला, क्या बोला गया? ए जीरो और बी ग्रेटर देन जीरो। तो आज छे बी नी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पॉजिटिव। अगर ये वाला पॉजिटिव है तो यहाँ पर दोनों साइन सेम आनी चाहिए। अपना रूल याद करो, अपना ये रूल याद करो, दोनों साइन सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? आज ये वस्तु છે તે હા કે હા मतलब यस। હવે यस ક્યારે હોય? આજ સાઇન સેમ અહીંયા હોવી જોઈએ, કાં તો પ્લસ હોય તો પ્લસ અને માઇનસ હોય તો માઇનસ। પણ જો બે પોઝિટિવ નંબર હતો તો બે નેગેટિવ નંબર હોય તો અહીંયા ઝીરો ક્યારે આવે? when can you say that a is zero? a will be zero only if both the numbers are zero। 0 plus 0 કરે તો જ 0 આવે। બાકી તમે કોઈ બી નંબર લેવો, બંનેને સેમ લો, 2 2 લેવો અથવા તો બે ને -2 લેવો, will it going to be zero any way? No. Never. No sir. Greater than zero, this option does not hold true। this is not true। अभी आगे वाले ऑप्शन हम लोग निकालेंगे। ये वन ऑफ द ऑप्शन है। यहाँ पर क्या बोला गया? ए देन ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए जीरो होगा तो बी लेस देन जीरो होगा, लेकिन ए जीरो ही होगा ऐसा हम कह नहीं सकते। आप एम नहीं कहवाय कि ए हमेशा जीरो ज हशे, કેમ કે અહીંયા કન્ડિશનમાં આપેલું છે કે આયરો અમારો ક્વેશ્ચન છે, ધીસ ઇઝ માય ક્વેશ્ચન, और इसमें ये वाला ए जीरो ही है ऐसा अगर हम ले लेते हैं, आपने ले लिए, इफ वी टेक इट टू बी जीरो so that also will be wrong। तो this is one of the condition, it is not always that a will be zero। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, આગળ જઈએ। આગળ ઓપ્શન કયો છે તમારી પાસે? the C option says a not equal to zero। this a is not equal to zero। zero નથી, zero સિવાયનો કોઈ નંબર છે। and b is negative number। b less than zero का मतलब, यहाँ पर देखो b less than zero का मतलब होता है, सॉरी, b less than zero का मतलब होता है b is a negative number। तो आ जो नेगेटिव नंबर હોય તો અહીંયા પ્લસ માઇનસ કાં તો માઇનસ પ્લસ બેમાંથી કંઈ પણ આવશે, અને કંઈ પણ આવે if it gives anything તો પછી આનો કોઈ બી નંબર આવે તો કંઈક ને કંઈક તો આવશે, something will come। yeah, something will come, but that something can also be zero। એ something છે તે બીજું નોન ઝીરો બી આવી શકે, ઝીરો પણ આવી શકે। say for example હું અહીંયા લખું 2 અને -2 તો 0 આવશે, પણ જો હું અહીંયા લખું 3 અને -2 તો એ નોન ઝીરો પણ આવી શકે, because નંબર કયા આવશે તે આપણને ખબર નથી। we don't know what number will be there, we only know the sign। so here not equal to 0 is also possible, is equal to 0 is also possible for b less than 0। पॉजिटिव में देखो, अगर b पॉजिटिव है मतलब दिस b is पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर दोनों सेम साइन आएगी, दोनों प्लस दोनों माइनस। इन दिस सिचुएशन दे आर सेइंग दैट a is not equal to 0। तो ये भी हम नहीं कह सकते, राइट। आ पॉसिबल है क्या रहे? सपोज के હું આમ આપું કે ભાઈ આ પણ 2 ને આ પણ 2 તો 2 + 2 એટલે 4, 4 is not 0। અહીંયા હું લખું -2 and -2 तो -2 या फिर दूसरा नंबर भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट एनी अदर नंबर एज वेल, राइट। तो दूसरा कोई अगर नंबर लेता हूँ तो भी यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आने वाला। आप देखो यहाँ पर इट विल नेवर बी 0, કેમ કે બંનેની સાઇન સેમ છે। જોઈ લો, બંનેની સાઇન સેમ હોય ત્યારે બંને નંબર તમે સેમ લો કે તમે બંને નંબરને જુદા લેવો, even if you take both the numbers to be same or different, a will never going to be 0। true or false? જો માઇનસ આ તો તમને એમ થાય કે 2 કેમ લે, ચલો બીજો કે નંબર -5 કેટલા થાય? -10, રાઈટ। હવે તમને એવું કહું કે +5 કેટલા થાય? 10। अच्छा હું સેમ નંબર નહીં લઉં, -5 -7 -12, બીજું કોઈ નંબર લેવો, ચલો +5
and plus 11. So જ્યારે તમારી બેવ સાઇન સેમ હશે ને, when both the signs are same, you will never get 0 right here unless both the numbers are 0. 0 plus 0 કરો તો જ તમારું 0 આવે, અથવા તો -0 કરો તો જ 0 આવે, કાં તો +0 +0 કરો તો જ 0 આવે. પણ આપણે તો ચોખ્ખું કીધું છે both the zeros are non-zero. मतलब બંને જે a alpha અને beta છે તેમાંથી કોઈ પણ 0 તો છે જ નહીં, એટલે this is not the option. So the only option found right is this. This is true always. Option A. Option D. This is true always. This is true only. સર પણ D માં તો બંને સાઈન અલગ હોવી જોઈએ ને, સાઈન અલગ Sorry. હોવી જોઈએ. ઓપ્શન ડી માં બધા સાઈન બંને સાઈન સેમ છે, પણ અમારે कुछ ઓપ્શન સાઈન અલગ હોવી જોઈએ. Oh yes. Opposite real non-zero. Non-zero is also said, but opposite is also mentioned, right? So if you have opposite sign એટલે તમારે પહેલા આ ઓપ્શન તો કાઢી જ નાખવાનો. Yes, I ignored this, that's why it happened. मैं इग्नोर કર્યું. B जब आपको बोला गया, मतलब opposite sign હોય તો B તમારો always કેવો આવશે? Negative. B will always be negative. એટલે B negative આવશે હંમેશા, એટલે આ greater than વાળા ઓપ્શન તો કેન્સલ જ કરવાના. You cancel this option. Yes. કેમ કે એક વર્ડ અહીંયા એ લોકોએ લખેલો છે, the word written over here is opposite. Non-zero પણ છે and they are also opposite. Opposite word cannot be ignored. જો બંને 0 તમારા opposite હોય તો અહીંયા જે આવવાના તે બંને કેવા આવશે? એક પ્લસ તો એક માઇનસ તો પેલો પ્લસ. અને આવું જો હોય તો B will always be negative. नेगेटिव का मतलब होता है B less than 0. B less than 0 वाला जो ऑप्शन તમારે ચેક કરવાના માંથી. Always look for the B less than 0. अब B less than 0 में આપણી પાસે તો બે જ ઓપ્શન રાઈટ હતા. I told you that this is conditionally true and this is true always. This is true always if this condition is not met. Opposite નહીં હોય તો આ condition always right હોતે. તો હવે આપણે શું કરવું પડશે? આ તો કેન્સલ થઈ ગયું કેમ કે ગ્રેટર ધેન છે, આ બી કેન્સલ થઈ ગયું કેમ કે ગ્રેટર ધેન છે, આ તો રાઈટ હતું જ નહીં. This was never right. તો પછી શું ઓપ્શન આવ્યો? This is the option. A is equal to 0 and B less than 0. Non-negative opposite real numbers are given, that's why. Opposite real number એટલે એક નંબર તમારો 2 હોય તો બીજો નંબર -2 હોવો જોઈએ. હવે આવું જો હોય ये पूरा निकाल देता हूँ, रुको पूरा निकाल देता हूँ. આનો મતલબ સમજો. જે ક્વેશ્ચન હોય ને, ક્વેશ્ચન ને જો હું જરા પણ ઇગ્નોર કરવા ગયો, I just missed a little bit, then I met with an accident. तो आपको क्या करना है? थोड़ा भी मिस नहीं करना है. पहली बात એમ કીધેલ છે કે નોન ઝીરો मतलब is not equal to 0. બંને 0 नहीं હોઈ શકે. अल्फा cannot be 0. बीटा is also not equal to 0. 0 तो नहीं है. और दूसरी चीज बोली गई है both are opposite. Both are opposite का मतलब होता है ये अल्फा और बीटा, एक 2 है तो दूसरा -2 होगा, एक -5 है तो दूसरा 5 होगा. अगर ऐसा है तो सम ऑफ देम विल बिकम 0. तो ये भी कर सकते हैं हम लोग यूजिंग द रिलेशनशिप. वी कैन आल्सो यूज रिलेशनशिप. सम will be 0. કેમ સમ 0 થશે કહી શકો તમે? કેન યુ સે why sum will be 0? because roots are or both the zeros are opposite to each other. If they are opposite to each other, sum of them will become 0. If sum of them is 0 तो sum कितना होगा? minus b upon a is equal to 0. Minus b upon a is equal to 0. Sum is 0. Minus b is equal to 0 तो b 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये b 0 वाला ऑप्शन नहीं है. हमने जो सोचा वही वाला ऑप्शन, ये मेथड से ही करना पड़ेगा. ये b, यहाँ पर a, यही करना पड़ेगा. ये b अगर 0 है तो ये दोनों अपोजिट होंगे. ये +2, ये -2, तो ये हो गया 0. लेकिन ऐसा अगर होगा तो b कैसा होगा? नेगेटिव. तो b less than 0 and a is equal to 0, that option will do. ये रिलेशनशिप पे से हमको नहीं पता चलेगा, इसी के ऊपर से पता चलेगा. ठीक है? हेलो, रूट्स अगर अपोजिट है तो ये दोनों अपोजिट साइन होनी चाहिए. Yes, sir. अगर ये अपोजिट साइन है तो ये नेगेटिव होगा, मतलब बी नेगेटिव होगा. तो ये वाला ऑप्शन देख रहा है तो बी नेगेटिव यहाँ और यहाँ दोनों में है. लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट मतलब सिर्फ साइन अपोजिट नहीं है, दोनों नंबर अपोजिट है.
ખાલી સાઇન અપોઝિટ નથી, અપોઝિટ રિયલ નંબર છે બંને. મતલબ આ જો 2 હોય તો આ -2 થાય. હવે વિચાર કરો +2 -2 કેટલા થાય? એ તો 0 જ થવાનો છે. So A is always going to be 0 in any case. True? Yes, sir. Chalo next. Answer the following by a number or by a word or a sentence. जैसा भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर करो. तो यहाँ पर 1, 2 and 3 are taken from the exemplar book. चलो कहीं से भी लिया हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है. क्वेश्चन देखो. When this is divided by a polynomial with degree 5, can the quotient be this? આવું પૂછેલું છે. તમે જ્યારે x⁶ વાળી કોઈ પોલિનોમિયલ ને डिवाइड करो with the degree of polynomial 5, with degree of polynomial 5, मतलब क्वोशंट आपका 5 डिग्री वाला और जो डिविडेंड है that is of 6 डिग्री. तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आ सकता है? X. Only x. X. Can it have x square? No. No. तो यहाँ पर पूछा है No, कि sir. आ सकता है क्वोशंट ये वाला आ सकता है, तो आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो. बस और कुछ नहीं करना. खबर पड़ी? Yes, Yes, sir. चलो सेकंड. When Yes, sir. polynomial is divided by gx, the quotient is 0. मतलब ऊपर 0 है. Compare the degrees of px and gx. Quotient is 0. So when something px is divided by gx and this is 0, right? और इसके बारे में बोला गया कि कंपेयर द डिग्रीज ऑफ दिस एंड दिस. कोई ऐसी पॉलिनोमियल जिसको gx से डिवाइड करें तो क्वोशंट तो 0 आता है, तो ऐसा तो तभी होगा. x અને gx सेम હોય. नो, चलो मैं दोनों का सेम लेता हूँ. x² x -1 x -1 આવું લેવું તો 1 ચાલે, 1. ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा क्वोशंट अगर सेम है, तो ये दोनों सेम है तो ये 1 आएगा. बताओ બંને નો 0 સાથે કરીએ ત્યારે if we multiply it by 0. नो. gx જે કરો gx, yes, either px 0 or gx is equal to 0. आइडियली આપણ ઓપ્શન નહીં આવે. gx cannot be 0 કારણ કે કોઈ પણ દિવસ ડિવાઈડ કરીએ, whenever we divide something, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. इट्स अ रूल ऑफ डिवीजन. डिवीजन का स्टैंडर्ड रूल क्या है कि जो डिनोमिनेटर अगर मैं 5 डिवाइड बाई 0 करूं तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर 0 आएगा. आप बोलोगे 0 0 0 0, तो ये 0 का आंसर नहीं है. 0 इज नॉट द आंसर. इसका आंसर अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते. तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. डिनोमिनेटर gx है वो 0 नहीं हो सकता. तो द ओनली थिंग वी नीड टू राइट इज px इज इक्वल टू 0. क्या है? px 0. देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूं px ये 0 है और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूं x -1 या कुछ भी लिखूं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा? ओनली 0 इज द आंसर. तो 0 आएगा. ऑलवेज क्वोशंट विल बिकम 0 इफ द डिविडेंड इज 0. तो તમારે શું કહેવાનું છે? gx not equal to 0, px is equal to 0. ये वाली कंडीशन लिखनी चाहिए. डिवाइसर कैन नेवर बी 0. ये आपको समझ में आई कि नहीं बात? ये डिवाइसर 0 नहीं होना चाहिए. हायर लेवल पर भी તમને પૂછાય છે. Yes, sir. પણ હાયર લેવલ પર એટલે મેથ્સમાં કેવા પણ હાયર લેવલ પર ઇન્ટરવ્યુ માટે જાય ને તો પણ આવા ક્વેશ્ચન પૂછે કે 12 डिवाइड बाय 0 करो तो कितना आंसर आए? तो मोटे भागना लोग 0 बोले. 12 डिवाइड बाय 0 अगर मैं करूं तो इसका आंसर 0 कभी नहीं आएगा, नेवर. क्योंकि 0 को किससे डिवाइड करूं तो 12 आएगा. तो किसी से भी कर लूं, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो रहेगा तो 0 ही है कि नहीं. तो हाउ कैन यू से दैट 0 इज माय आंसर? 0 0 तो 0 रहेगा.
इसका आंसर कुछ नहीं आएगा. सो इट इज इनडिटरमिन्ड, इनडिफाइनाइट आएगा. मतलब इसको हम लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू इनफाइनाइट. जब भी नीचे जीरो आता है तो उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द सम ऑफ द zeros ऑफ quadratic polynomial this. तो ये तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं. बोलो डायरेक्टली आंसर बोलो. सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपन ए. Yes, sir. माइनस बी अपन minus of minus 8 upon 15. माइनस बी अपन ए मतलब माइनस ऑफ माइनस. minus b Minus upon 8 a upon आंसर इज is upon equal to 1 8. is equal to 8 upon 1. yes, someone's voice is coming so late. Sir, Okay, so got it. यहाँ पर a is equal Sir. to b is equal to -8, c is equal sir, to, yes. sir, second question માં compare શું કરવાનું? Compare the degrees. શું નથી સંભળાતો અવાજ? શું કહે સેકન્ડ માં? So second માં last line માં લખ્યું છે compare the degrees. તેમાં શું કરવાનું? Compare the degrees of this. So degree of px, the degree of the px will be 0 and the degree of gx can be anything. क्योंकि gx तो कुछ भी होगा, 0 नहीं होगा. 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर ये 0 हो तो ये इसकी डिग्री कुछ भी होगी तो चलेगा. यहाँ पर कंपेयर बोला गया कि मतलब डिग्री कैसी होनी चाहिए या फिर कैसी हो सकती है ये बोला गया. तो यहाँ पर px की डिग्री 0 होगी और gx की डिग्री जो है वो कोई भी हो सकती है. क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है. यहाँ पर अगर मैं हायर ले लूँ, ये 5 ले लूँ और ये वाला इसको हायर ले लूँ तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता. इसको किसी से भी डिवाइड कर होना ही नहीं है. इसको किसी से भी. तो यहाँ पर अभी 0 लिखूँ तो होगा क्या? ये 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा. दिस विल बी द रिमाइंडर. तो ये भी, हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है. कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मेरे को लोअर पावर वाली पोलिनोमियल को हायर पावर वाली पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर क्वेश्चन तो 0 ही आएगा. या ये भी ऑप्शन रह सकता है. सही बात है. और रिमाइंडर क्या आएगा? px विल बी द रिमाइंडर. यहाँ पर जो भी होगा ना वही रिमाइंडर आएगा. तो इसमें ये भी हो सकता है कि व्हेन gx इज हैविंग हायर डिग्री than the degree of px, then quotient will always be 0. કેમ કે તમારાથી 1 થી પણ નહીં ચલાવશે. x raised to 6 વંજા કરો તો બી વધી જાય, x raised to 6 થઈ જાય. ठीक है ना? तो આ જે 6 પાવર એટલે આની ડિગ્રી જો હાયર હોય તો પણ कंपल्सरीली તમારે ये 0 લખવો પડે. This is another case. फर्स्ट केस आई टोल्ड यू कि यहाँ पर अगर 0 है तो भी क्वोशंट कंपल्सरीली 0 आएगा. लेकिन इस कंडीशन में gx कैन बी एनीथिंग અને क्वोशंट विल ऑलवेज बी 0. तो ये px भी 0 होना चाहिए. लेकिन अगर जनरलाइज बात करें तो ये होना चाहिए, ये वाली चीज. तो यस, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द डिग्री. व्हेन gx इज हैविंग हायर डिग्री देन द px, क्वोशंट विल ऑलवेज बी 0. नाउ यू गॉट इट? Yes, sir. This seems to be correct. હવે આ કરો. फोर्थ, state the remainder less than 1 minute so we can abruptly be cut off. फिर से ज्वाइन हो जाओ. चलो इसको मैं कट कर देता हूँ. फिर से ज्वाइन हो जाओ यहाँ पर, बिकॉज लेस देन 1 मिनट बची है, कहीं पर भी खत्म हो सकता है. चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं. ax² plus bx plus c, a not equal to 0. When this is divided by a polynomial px³ plus qx², ये देखो ये हायर पावर है ना, एंड p is not equal to 0. तो पूछा क्या गया? स्टेट द रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने आगे वाले क्वेश्चन में समझाया आप लोग.